everyone, welcome. Thank you very much for joining us here on Times Now. This is the News Hour special edition this Saturday evening, and I'm Hina Gambhir. Viewers, it was an action-packed day in Bareilly in Uttar Pradesh today, both politically and administratively. From bulldozers raising multiple properties linked to the alleged mastermind of the violence, to politicians clashing with police in a bid to gain political mileage. The I Love controversy shows no signs of dying down at all. So let's first begin with the politics of the situation. A delegation of Samajwadi Party, which had intended to visit Bareilly and meet families of those affected in violent clashes, was blocked by the police. Samajwadi Party MP Ziaur Rahman Barq was placed under house arrest in Sambhal, while preventive action was also taken against leader of opposition Mata Prasad Pandey, who was confined to his residence in Lucknow. Several other leaders were stopped at the Ghazipur border, with police citing the law and order situation in Bareilly and the need to maintain peace. Samajwadi Party has condemned the administration's decision to block their visit, calling it an attempt by Yogi government to silence dissenting voices. Listen. लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसके विपरीत सरकार का ये आचरण है। माता प्रसाद पांडे जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और दो बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, वरिष्ठ नेता हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर ये प्रतिनिधि मंडल जा रहा था वहां के हालात को देखने के लिए, लेकिन उसको जाने से रोक दिया। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। हम बरेली जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं और जिस प्रकार से उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, इस चीज को पूरी देश और दुनिया देख रही है और एक ये नजीर जो बन रही है, इससे हमारे प्रदेश में देश की छवि खराब हो रही है कि किस प्रकार से टारगेट कर करके लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, हम उसके साथ दो तरीके से कि आजाद मुल्क के अंदर कभी सोचा नहीं था हमारे में इस प्रकार के दिन कभी देखने को मिले। जाएंगे तो हम वहाँ पे आज नहीं तो कल हम वहाँ पहुँचेंगे। पहले संभल भी हमें रोका गया था, फिर दोबारा हम एक डेलीगेशन बना के वहाँ पर गए थे और तब कोई हिंसा वहाँ पर नहीं भड़की थी, कुछ ऐसा माहौल नहीं हुआ था। आज समझ में नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश सरकार किस वजह से डर के अपनी कौन सी काली करतूत छुपाना चाहती है प्रशासन की मदद से। The Bharatiya Janata Party dismissed the Samajwadi Party delegation's attempted visit to Bareilly as a political gimmick. Ruling party has accused the opposition of stoking emotions through what it calls dirty appeasement, vote bank appeasement politics. देखिए, ऐसे है कि समाजवादी पार्टी के लोगों में वहां के सांसद संभल के वर्क साहब जहां जा रहे हैं, इकरा हसन जा रही हैं, रामपुर के संदन मुहिबुल्लाह जा रहे हैं वहां पर, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसके ऊपर आंसू बहाने आप जा रहे हैं वहां पर? उन आतताइयों, आतंकियों, उपद्रवों के लिए आंसू बहाने चाह रहे हैं? ये पूरी तरीके से उसी योजना के तहत जा रहे हैं कि माहौल वो चाह रहे थे खराब हुआ नहीं, पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गया। अब इनको लग रहा शायद हम जाएंगे तो धीरे धीरे खराब होगा, तो किसी को बरेली का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपने अपने घरों में रहें और बरेली के लोग भी अपने घरों में अमन चैन से रह रहे हैं। Viewers, as you may recall, protests had erupted in Bareilly on 26th of September over administrative action against the I Love posters. The demonstrations quickly turned violent, with stones being hurled at police personnel. So far, 81 people have been arrested in connection with this case, including Tauqir Raza, the alleged mastermind. Today, the Bareilly administration intensified its crackdown. Bulldozers rolled in, demolishing a property linked to Tauqir Raza's aid. A marriage hall belonging to one of those arrested in connection with the violence was also razed. Incidentally, the bulldozer action came just a day after the Chief Justice of India spoke out against what is popularly called bulldozer justice, a term often used by BJP supporters to justify demolition drives against the accused. Addressing a gathering, Chief Justice of India, Justice Gawai, stated that demolishing houses in response to alleged crimes violates the law, highlighting the Supreme Court's guidelines designed to curb such actions. The Chief Justice further emphasized that India's legal system is governed by the rule of law, not the rule of the bulldozer. Take a look at the report sent to us by my colleague.
वैसे मैं खड़ा हुआ हूँ थाना किला के जखीरा मोहल्ले में, और देख सकते मेरे पीछे ये डॉक्टर नफीस का जो बारात घर है, वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। और डॉक्टर नफीस की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार ये माना जा रहा था कि उनके बारात घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, और उनकी गिरफ्तारी से पहले ही उनकी जो 74 दुकानें हैं उनको नगर के द्वारा सील कर दिया गया था। आप देखिए लगातार उनको बुलडोजर के साथ में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो चल रही है, और जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जिससे यहाँ पे किसी तरह की घटना न होने पाए। और जुम्मे की नमाज के बाद से बवाल के देर से ही प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है, और ये प्रयास किया जा रहा है कि इस बार दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो हमेशा याद रखे। जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी थी कि मौलाना की 7 पुख्ते भी याद रखेंगे, उसी तरह से अब प्रशासन लगातार प्रॉपर्टी को चिन्हित कर रहा है, और अब 83 गिरफ्तारियों के बाद बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आप देखते हैं पीछे 3 बुलडोजर इस समय खड़े हुए हैं, और लगातार जो पूरा बारात घर है वो उसको जमींदोज किया जा रहा है। और तो एक बड़ी कार्रवाई आज बरेली में बुलडोजर की देखने को मिल रही है, और इसके बाद माना यह जा रहा है कि ये कार्रवाई अब यहीं पर नहीं रुकेगी। इसके बाद भी जो और दंगाई हैं, जो उनकी संपत्तियां हैं, उस पर भी प्रशासन बड़ी कार्रवाई करेगा। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जो कि एक नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जाती है, और इसमें सुरक्षा की दृष्टिगत, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टिगत पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि बताया था बीडीओ उपाध्यक्ष ने कि लगभग 100 संपत्तियों की लिस्ट बनाई जा रही है, तो क्या और आगे इस तरह की कार्रवाई मिल रही है? नहीं, ये जो कार्रवाई है ये पूरी तरह अलग कार्रवाई है। ये बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की गई कार्रवाई है, जो कि नियमानुसार और रेगुलरली की जाती है। पुलिस यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि से लगी हुई है। And to discuss it, I'm joined on the broadcast by Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of the Bharatiya Janata Party. I'm also joined by IP Singh, national spokesperson of the Samajwadi Party. Good evening to both of you gentlemen. Thank you very much for joining us here on this debate this Saturday evening. Dr. Kaushal Kant Mishra, according to Samajwadi Party, the bulldozer action that we are seeing in parts of Bareilly that happened today, it is like Talibani mindset. Samajwadi Party has also quoted what the Chief Justice of India had said. Under the rule of law, there is no place for bulldozer action. How will you like to respond? है ना, सबसे पहले तो बुलडोजर जस्टिस के बारे में जो कहा जा रहा है, बुलडोजर 2 तरह से होते हैं, एक लीगल बुलडोजर और एक इलीगल बुलडोजर। लीगल बुलडोजर को समाजवादी पार्टी और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट तक ले आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हर बार लीगल बुलडोजर को सर्टिफाई किया है। इसलिए बात लीगैलिटी इलीगैलिटी की तो है ही नहीं। बात सच्चाई ये है कि बुलडोजर लीगल चल रहा है या इलीगल चल रहा है, और अभी तक एक भी बुलडोजर एक्शन ऐसा नहीं हुआ जो इलीगल रहा हो। अगर जिन लोगों ने, जिन दंगाइयों ने, अपराधियों ने, आतंकियों ने, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा था, गरीबों की जमीन पे कब्जा कर रहा था। फर्क यह है ना कि पहले बुलडोजर चलता था आतंकियों के लिए, अपराधियों के लिए, आजम खां, अतीक, मुख्तार, सबको जमीन, गरीबों के जमीन पे कब्जा दिलाने के लिए बुलडोजर चलाते थे, तो वो इलीगल था। आज जो इलीगल कब्जा इन आतंकियों ने कर रखा है, अपराधियों ने कर रखा है, उस जमीन को से बुलडोजर से गिरा करके उस पे गरीबों को घर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बुलडोजर बहुत बार जब से योगी जी आए हैं तब से बुलडोजर एक्शन की बात हो रही है, पर आज तक क्या एक भी बुलडोजर एक्शन के बारे में रिवर्सल ऑर्डर आया? नहीं आया। इसका मतलब अगर बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया ना, इफ यू फॉलो द प्रोसीजर, आपने नोटिस दिया है, आपने 15 दिन का टाइम दिया है, आपने वहां पर जाकर के नोटिस चिपका दिया है, उसके बाद आप बुलडोजर एक्शन कर सकते हो। ये लीगल है, और इसीलिए अभी तक किसी कोर्ट ने उसको रोका नहीं। और दूसरी चीज आपने कही, आपने अपने प्रोमो के समय में कहा था कि विपक्ष की आवाज को साइलेंट की जा रही है। हिना जी, ये जो नेतागण हैं जो जा करके वहां पर बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, उनकी कौन सी आवाज है जो नेशनल चैनल पे नहीं चल रही है? आईपी सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, और एक बर्ग साहब, जियाउर रहमान बर्ग, जो खुद बिजली चोरी के आरोप में सजा याफ्ता है। जी, सच्चाई है ना, बिजली चोरी के आरोप में सजा याफ्ता है, और उन्होंने करोड़ों का जुर्माना भरा,
तो ऐसे चोर लोग जाकर के वहां पे क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? ओके, माहौल ही खराब करेंगे। लेट मी गो अक्रॉस टू मिस्टर आईपी सिंह एज वेल नाउ। आईपी सिंह जी, 2 पॉइंट्स हैं जो मैं पहले आपके सामने रखना चाहती हूँ, व्यूअर्स को भी पता चले, फिर आप जवाब दीजिएगा। पहला तो ये बरेली में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसकी अगर बात करें तो बीडीए के जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये रूटीन जो है एक्सरसाइज है। जो बारात घर डिमोलिश किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, डॉक्टर नफीस का जो क्लोज एड भी हैं तौकीर रजा खान के, उनको एक नोटिस जो है 2024 में दिया गया था क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इलीगल था। फिर एक डेमोलिशन ऑर्डर जो है 17 मई 2025 को इशू किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से उन्हें 30 दिन दिए गए थे अपील फाइल करने के लिए। अभी तक कोई अपील फाइल नहीं करी है। संभल की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन को स्टे करने से मना कर दिया। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूं, आप क्यों पॉलिटिकल लेंस से हर चीज को देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और तालिबानी माइंडसेट आप क्यों कह रहे हैं जब यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि रूल्स को फॉलो किया जा रहा है? मुझे भी अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा जी। मॉरिशस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री बी.आर. गवई जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा कि सरकार एक साथ न जज हो सकती है, न ज्यूरी हो सकती है और जल्लाद नहीं बन सकती। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, और उन्होंने कहा कि 2024 में बुलडोजर नियम संविधान की आर्टिकल 21 का ये वायलेशन हो रहा है। कोर्ट ने बहुत साफ तौर से कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर से कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते। तो तालिबानी हुकूमत की तरह जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, मैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बयानों का संज्ञान लिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री के बयानों का संज्ञान ले। जिस तरह से सबको, सभी धर्मों को का बराबर का अधिकार है, उस बात का माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। और जिस तरह से इमारत तोड़ी जा रही है, जिस तरह से ये कार्रवाई बहराइच में, आजमगढ़ में, कानपुर में, उसके बाद रामपुर में जिस तरह से चिन्हित कार्रवाई हो रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार जी, ये पूरी तरह से मौके पर विफल हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो गया था। जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुमत से 35 ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को आई है। तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जो प्रवासी हैं, उत्तराखंड के हैं, जिस मठ की इनकम 11 करोड़ से 800 करोड़ हो गई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, जिस तरह से बिजली नहीं आती, उद्योग धंधे बंद हैं, भ्रष्टाचार पग पग पर है, कोई जगह चले जाए बिना रिश्वत के काम नहीं होता। मेरे अपने एक सगे रिलेटिव ने, मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करने वाला हूं कि कैसे बिजली छापे गांव में पड़ रहे हैं और कैसे उसकी डील हो रही है। ये अधिकारी और मंत्री सब मिलकर लूट रहे हैं। मैंने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, आपको आपकी बात रखने का मैंने पूरा मौका दिया आईपी सिंह जी, लेकिन अब आप जो है मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बाकी के मुद्दों को यहां पर लेकर आ रहे हैं। वी आर स्पेसिफिकली डिस्कसिंग जो बरेली में हुआ, जो बुलडोजर एक्शन हुआ, और उसमें आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई का एक स्टेटमेंट पढ़ा। वो स्टेटमेंट मेरे सामने भी है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने इस ऑर्डर में कहा था मेरे सामने वो भी है। इफ अ सिटीजन्स हाउस इज डिमोलिश्ड merely because he is an accused or even the matter a convict without following due process will be totally unconstitutional. But there is a process that is being followed in this case. बरेली की बात की जाए तो नोटिस तो भेजे गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया 2024 में नोटिस भेजा गया था कि बारात घर का जो स्ट्रक्चर है वो इलीगल है। उसके बाद डिमोलिशन ऑर्डर भी इशू किया गया था 17 मई 2025 को, और उसके बाद सामने की पार्टी की तरफ से कोई अपील भी फाइल नहीं की गई थी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को थोड़ी देर साइड में रखकर, और अगर रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो उसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए? आईपी सिंह जी,
मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई दिया क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। अभी आपको मेरा सवाल क्लियर हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आखिरी 15 सेकंड का सवाल मैं ले पाया हूँ। नहीं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने रेज किया। मैं फिर से बता देती हूँ। बारात घर जो डिमोलिश हुआ है आज, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, उसके लिए एक नोटिस इशू किया गया था अथॉरिटीज की तरफ से मई 2024 में। 17 मई 2025 को डिमोलिशन का ऑर्डर इशू किया गया था। आज 4 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। आपने पहले कहा था नोटिस वगैरह नहीं जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार उन्हें 30 दिन दिए गए थे अपील फाइल करने को, वो भी नहीं हुई थी। उसके बाद अगर एक्शन होता है, रूटीन एक्शन होता है इलीगल स्ट्रक्चर हटाने का, तो आप क्यों इसे फिर तालिबानी माइंडसेट कह रहे हैं? 2000 साइट्स ऐसी हैं बीजेपी नेताओं की कि अगर एक तरफ से हम सुनाते चले जाएं तो जिस लखनऊ में हम बैठे हैं, कम से कम यहाँ 250 ऐसी प्रॉपर्टी बीजेपी नेताओं की है जिस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लगातार जनता और समाजवादी पार्टी ने उन मुद्दों को उठाया है। 75 जिलों में कम से कम 100 ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर अवैध कब्जा है बीजेपी के लोगों का, उनकी सहयोगी दलों का। उस पर लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए जिस तरह से श्री इरफान सोलंकी जी को 3 साल झूठे मुकदमे में, वो विधायक थे 3 बार 4 बार के, उनको जेल में डाला गया। आप इस वाले मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, आप सब तरीके की बातें कर रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है इस डिबेट के लिए क्योंकि बरेली डिस्कस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मेरे को। एक प्रवासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तराखंडी है, कौशल कांत मिश्रा हिना जी, सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी को अपने वोट बैंक से डर है कि उन्होंने कहा ना कि हमारी इतनी सीटें आई। हम सीटों के बेसिस पे जस्टिस नहीं करते। हम जब सरकार में होते हैं तो लोक का जनता की बात सबसे सर्वोपरि होती है। जनता के लिए जो बेस्ट है वो करते हैं। इनके लिए समझिए हिना जी, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, वो क्यों हुआ था? सचिन और गौरव जाट की बहन के ऊपर कुछ मुसलमानों ने फफकी कसी थी, उसके बाद वो गए थे, उनको मार डाला गया। मार डालने के बाद क्या किया गया? जब लोग गए FIR करने तो मुस्लिम आजम खान ने फोन करके उनको छुड़ा दिया, इसलिए दंगा हो गया। और दंगा होने के बाद 70 करोड़ रुपए का मुआवजा केवल मुसलमानों के लिए बताया। इस तरह का तालिबानी शासन अखिलेश जी चलाते थे तो उनको पेट में दर्द हो रहा है और वो वोट बैंक से आंकने की कोशिश कर। और एक बुलडोजर पे एक आंकड़ा देता हूं हिना जी, 2023 में 294 हाउसेस पर डे बुलडोज हुए हैं पूरे इंडिया में। 294 हाउसेस। 2022 में 129 हाउसेस पर डे हुए हैं। 1,53,820 घरों पर बुलडोजर 2022 और 23 में चला है। तो क्या सब इलीगल थे? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो बुलडोजर जस्टिस को गलत तरीके से पेंट किया जा रहा है, राजनीतिक तरीके से पेंट किया जा रहा है। अगर लीगल बुलडोजर है उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको पावर देता है कि अगर किसी ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है तो उसके ऊपर बुलडोजर कभी भी चलाया जा सकता है। देश में अरे तो यही तो बोल रहे हैं, आपातकाल है। अघोषित आपातकाल के जाति के खिलाफ कार्रवाई, धार्मिक आधार पर कार्रवाई, बीजेपी के जो लोग हैं, मंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर कार्रवाई। आप अपराध में जाति ढूंढेंगे, आप अपराध में धर्म ढूंढेंगे, आप अपराध में अपना वोट बैंक ढूंढेंगे। ये आपकी समस्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास करती है। बिहार साफ बता रहे बिहार आप जो है अपराध में आतंकी धर्म ढूंढेंगे। Both of you gentlemen, please calm down. Kaushal Kant Mishra ji, IP Singh ji, both of you please calm down. The viewers heard both the sides here. Thank you very much. I'm completely out of time. Thank you very much both of you for joining us. Of course, we'll be tracking this closely ahead as well on Times Now. For now, thank you very much Mr. Kaushal Kant Mishra and IP Singh for joining us.